लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, दोस्त आप जॉब कर रहे हो, दोस्त बोलेंगे चलो गोवा घूम के आते हैं, आप बोलोगे नहीं, क्योंकि आपको पढ़ाई करनी है। इफ वी वांट टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, वी विल हैव टू इंश्योर कि ये सारे चैलेंजेस हम इफेक्टिवली डील कर पाए। इफ यू हैव प्रॉपर गाइडेंस, जो लिमिटेशंस है ना कि यार मेरे को हेल्थ इशू हो रहा है या फिर मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ या वर्कलोड ज्यादा है, उन सबको एक प्रॉपर गाइड वुड बी एबल टू हेल्प यू। बच्चा ओल्ड राजेंद्र नगर में 10 घंटे पढ़ रहा होगा, बट अगर वो 10 घंटे पढ़ते पढ़ते ये सारी चीजें कर रहा है, उसका इफेक्टिव प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं होगा जितना यू विल बी एबल टू हैव बाय स्टडिंग ओनली फॉर 5 आवर्स एवरी डे। जनरली जो 9 to 6 की जॉब है ना, उसका पूरा काम 9 to 6 में कंप्लीट हो सकता है इफ यू आर फोकस्ड, बट इन रियलिटी व्हाट वी डू इज there are some challenges too, there are some issues also which would emerge। एक तो देखो टाइम मैनेजमेंट का चैलेंज, you will be doing two things, you will be doing your college or you will be doing your job, and then you will be preparing for civil services examination, and both require a lot of work। You're all young people, you have just joined jobs, and वहां पे भी आपको सीखना पड़ रहा है in order to understand everything, and then preparing for this exam, it would be थोड़ा सा hectic, थोड़ा नहीं बहुत hectic रहेगा। I'll be truthful, it's going to be really hectic। दूसरा, there would be a lot of irregular breaks, sometimes some project some feature is getting released in your job, in your work, you are working on a project, उसका release date आ रहा है, तो everyone is uh, staying in office till 3 a.m. in the morning just for those 2 weeks। उस 2 weeks में ना आपका पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसे ही if you are in the college, if you are in college and you are preparing for civil services also, uh, there would be a few weeks of exam wala phase where you will give up your preparation, so those irregular breaks hamper our preparation, that would be a challenge। We'll talk about how do we deal with it, how do we solve that, but that would be a challenge। And then when while working or while in college you start preparing, आप अपना सारा फ्री टाइम किस पे दे रहे हो? आप अपना सारा फ्री टाइम प्रिपरेशन पे दे रहे हो, एंड you will not be able to have a lot of social life। Why? After, like, on Fridays your teammates would be going out, they'll be bonding, you perhaps would not be able to, because अभी हम प्लान बनाएंगे, हम देखेंगे सैटरडे संडे हमें बहुत पढ़ाई करनी है। इन द सेम वे लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, दोस्त आप जॉब कर रहे हो, दोस्त बोलेंगे चलो गोवा घूम के आते हैं, आप बोलोगे नहीं, क्योंकि आपको पढ़ाई करनी है। तो थोड़ा सा सोशल आइसोलेशन भी होगा। घर में कोई फंक्शन है, पेरेंट्स वुड से आजा बेटा 2-4 दिन के लिए आजा, बट यू मे एंड अप सैक्रिफाइसिंग दैट ऑल्सो। अगेन पढ़ाई करनी है, तो दिस आइसोलेशन बिकम्स अ चैलेंज, इट टेक्स अ टोल ऑन आवर मेंटल हेल्थ। देन accessing mentors, see, because you are in college, because you are in job, आप अगर फुल टाइम पढ़ रहे होते, आप ओआरएन में आ जाते, आप टीचर्स से बहुत आसानी से मिल पाते। आप फुल टाइम पढ़ रहे होते, आप अपने घर से भी बैठ के पढ़ रहे थे, इवन इफ यू आर स्टडिंग फ्रॉम योर होम, what would have happened is you could have called in office, got an appointment, and उस टाइम बात कर सकते हो। बट when you are working, suppose you get an appointment of 12 in the afternoon. Of 12 in the afternoon, it's your office time. You won't be able to speak. Or you get an appointment for 3 in the evening. 3 in the evening, maybe your college classes. You may not get time for that. Right? So sometimes, not always, I will make sure that आपको mentors office hours के बाद भी available हो. But sometimes what happens? Sometimes accessing your mentors becomes difficult. Taking proper guidance becomes difficult। Then this double life friction। Double life friction is this idea कि यार you एक पर्सन या तो जॉब कर सकता है, प्रिपरेशन कर सकता है। अब आप दोनों को चीजें करोगे ना, तो थोड़ा सा स्ट्रेस होगा, थोड़ा सा ये डाउट भी आएगा कि यार जॉब हैम्पर हो रही है, वहां पे मेरा प्रमोशन हैम्पर हो रहा है, बिकॉज आई एम पुटिंग मोर एफर्ट्स हियर। बट इफ यू विल स्टार्ट पुटिंग मोर एफर्ट्स इन जॉब्स, यू विल बी लाइक व्हाई एम आई प्रिपेयरिंग, ये प्रिपरेशन हैम्पर हो रही है ना? तो दिस डबल लाइफ फ्रिक्शन वुड बी देयर, एंड हेल्थ चैलेंजेस में ऑल्सो इमर्ज इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ इट। व्हाट वुड हैपन इज दिस कि uh, आप ऑफिस से आ रहे हो, अगर आपने फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान नहीं दिया, आपने इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ योर फूड, इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ योर स्लीप, you will have physical health issues also, and you will get mental health issues also। बहुत 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 क्लियर बातें हैं। तो if we want to study, if we want to prepare for civil services examination, we will have to ensure
कि ये सारे challenges हम effectively deal कर पाए. If we are not able to solve these problems, preparation would not be viable with job or with college. So how do we do it? What are the most important things that has to be kept in mind so that ये challenges emerge ना हो? देखो सबसे पहली चीज है discipline. मैं आपको ना honestly बताता हूं, no matter in which job you are, जनरली जो 9 to 6 की जॉब है ना, उसका पूरा काम 9 to 6 में कंप्लीट हो सकता है इफ यू आर फोकस्ड. बट इन रियलिटी व्हाट वी डू इज वी गो टू ऑफिस, वी हैव रैंडम डिस्कशंस. पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है? ओ आई एम अ नरेंद्र मोदी फैन, नो नो आई एम अ राहुल गांधी फैन, आई एम अ अरविंद केजरीवाल फैन, आई एम अ अखिलेश यादव फैन, एंड वी डिबेट ये अच्छा ये खराब है. अरे ठीक है, let others have that discussion. You may have some genuine points also to support one particular leader, बट अभी नहीं पढ़ना है उसमें. हम घंटों निकाल देते हैं रील स्क्रॉल करने में. वो नहीं. जब अपन प्लान करेंगे कि एवरी डे वी हैव टू स्टडी फॉर 5 hours, देन in those 5 hours we will not take any phone calls, we will not look at social media, we will ensure that all my engagement have been done in rest of the time. Only then, लाइक बच्चा ओल्ड राजेंद्र नगर में 10 घंटे पढ़ रहा होगा, बट अगर वो 10 घंटे पढ़ते पढ़ते ये सारी चीजें कर रहा है, उसका इफेक्टिव प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं होगा जितना यू विल बी एबल टू हैव बाय स्टडिंग ओनली फॉर 5 hours एवरी डे. तो फर्स्ट बिकम वेरी डिसिप्लिन्ड. मेक श्योर दैट your job also you're doing with a lot of discipline so that you don't have a lot of pending work, and at the same time your studies, at the time of your studies you are not getting diverted at all. Second चीज है planning. Planning for what? Planning for emergencies. Now what are emergencies? Emergencies वही ना, प्रोजेक्ट की डेडलाइंस आ गई, ये सारी चीजें आ गई. नाउ इन दैट सिनेरियो व्हाट आई एक्सपेक्ट यू टू डू इज कि यार प्लान फॉर इट इन एडवांस. जैसे आपका एग्जाम आएगा, इफ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट, योर एग्जाम्स आर कमिंग, तो यू शुड बी प्लानिंग कि यार वो 2 वीक में नहीं पढ़ पाऊंगा, बट राइट आफ्टर एग्जाम आई हैव माय हॉलीडेज, इन दैट एट दैट टाइम आई विल बी कॉम्पनसेटिंग फॉर इट, आई विल बी कंप्लीटिंग इट. फिर तीसरी चीज है गाइडेंस. लाइक इफ यू हैव प्रॉपर गाइडेंस, जो लिमिटेशंस है ना कि यार मेरे को हेल्थ इशू हो रहा है, या फिर मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, या वर्कलोड ज्यादा है, उन सबको एक प्रॉपर गाइड वुड बी एबल टू हेल्प यू. बेटा तू यहाँ पे ये कर ले, इस वाली चीज को अभी अवॉइड कर सकता है, इसको हम बाद में पढ़ लेंगे, इतना स्ट्रेस नहीं लेना. वो चीजें कैन बी यूजफुल. फिर सैक्रिफाइसेस. अब देखो सैक्रिफाइसेस हमें करने पड़ेंगे. कौन किस तरह के सैक्रिफाइस? सैक्रिफाइस लाइक मैं अपने दोस्तों के साथ नहीं जाऊंगा अब कि यार, और एवरी वीक आई हैव 3 hours ऑफ ब्रेक टाइम, उस टाइम मेरे साथ जो करना है कर लो, बट रेस्ट ऑफ द टाइम आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग एनीवेयर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग फॉर अ मूवी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. वो जो मेरा ब्रेक का टाइम है वहां पे मैं कुछ भी करूंगा, बट माय स्टडी टाइम विल बी माय स्टडी टाइम. एंड इन द एंड वी हैव टू इंश्योर कि हेल्थ प्रायोरिटाइज करो. अगर इफ यू विल नॉट प्रायोरिटाइज हेल्थ, यू विल नॉट बी एबल टू डू 2 things एट अ टाइम. आपको रोज देखो, व्हेन वी आर सेइंग कि वी विल स्टडी फॉर 5-6 we will study for 5 hours daily, with our job, with our college, it's going to be hectic, but it should not mean that we are sleeping less than 6 hours. 6 to 7 hours हमें सोना है. We have to eat healthy food. We have to ensure that there is physical movement. Before हम preparation शुरू कर रहे हैं, ये rule ध्यान में रखो, because it's a marathon. It's a marathon where you have to consistently keep working for next 15 months. In this scenario, you cannot be doing this कि आप रोज 3 घंटे सो रहे हो, 4 घंटे सो रहे हो. इट्स नॉट वायबल. रोज 3 घंटे 4 घंटे हम एक वीक के लिए सो सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट डू इट फॉर 15 months. It will hamper our preparation. You cannot rely on random bad food, fast food. You'll have to eat healthy food. You'll have to ensure that every day there is some movement, and that movement does not necessarily have to happen in a gym. आप अपने ऑफिस जा रहे हो, अपने कॉलेज जा रहे हो, एंश्योर दैट यू आर वॉकिंग, सो दैट एवरी डे अ फ्यू स्टेप्स यू आर वॉकिंग, यू आर यूजिंग स्टेयर्स इन, सो दैट देयर इज मूवमेंट हैपनिंग. इट वुड एंश्योर कि आप लंबे टाइम तक कंसिस्टेंटली पढ़ पाओगे. तो जो चैलेंजेस है ना, उन चैलेंजेस को हम डिसिप्लिन के साथ, प्लानिंग के साथ, प्रॉपर गाइडेंस के साथ, विद सम सैक्रिफाइसेस, एंड व्हाइल कीपिंग इन माइंड आवर हेल्थ, can resolve it. So let's talk about in general what should be the plan. How do we prepare? करना क्या है? देखो,
2027 एग्जामिनेशन को टारगेट करते हैं अभी के लिए. देयर आर सम एस्पिरेंट्स हु आर लुकिंग फॉर 2028 एग्जाम आल्सो. विल टॉक अबाउट 2028 या 2029 के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, हाउ शुड दे बी गोइंग अहेड. विल टॉक अबाउट दैट, बट लेट्स फॉर नाउ टॉक अबाउट 2027 एग्जाम.